वंदामी नमस्सामी। JCGP का बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में तो समदीजिया यहाँ पधारे हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। वेलकम शमनी प्रतिभा प्रज्ञा जी। शी इज अ स्कॉलर ऑफ जैन स्टडीज एंड अ सीनियर डिसाइपल ऑफ आचार्य महाश्रमण गुरुदेव, specializes in Jain yoga, comparative religion and non-violence. She holds a PhD in Preksha meditation, history and methods from SOAS University of London. At present, she is visiting assistant professor in Department of Religious Studies, Florida International University, Miami. So we welcome them. From last 30-35 years, she is living the Sanyam Jeevan. So, खूब आभार है अनुमोदना। शमनी पुण्य प्रज्ञा जी, a disciple of Acharya Mahashraman ji, holds MA degree in Prakrit and English literature. She is celebrated for her spiritual music and devotional music and leadership at Mahapragya International School. उनके 5 डिवोशनल एल्बम्स भी रिलीज हुए हैं, बहुत ही डिवाइन और भक्ति वाला उनका she uses voice. She spreads Jain Dharma worldwide and conducts research at she is conducting research at SOAS University of London. Recently, she is also serving as an adjunct lecturer in religious studies at Florida International University, Miami. So now Sandeep and Sweetie, who have hosted them, would share some their journey, how they arrived in Phoenix. So please welcome Sandeep. Sweetie. Hello everyone. जय जिनेंद्र। महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन, समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी और समनी पुण्य प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। With Samni ji's auspicious visit to Phoenix, Samni ji's intention was simple yet profound: to touch more hearts, awaken more minds, and spread the gentle fragrance of spiritual healthy living. In this Dharma Yatra of connection, several families opened their homes and hearts, hosting pravachans filled with depth and clarity. Sandeep and Sweetie Jain, Maya and Devendra Daga, Chintan and Divya Jhaveri, Shilpa and Mohit Nahar, Shamji and Rekha Delia. They covered a lot of topics about healthy and harmonious life, parenting, family, Preksha meditation, mantra meditation, jaining ceremony for my son yesterday, and many more. They also graced a few more homes with Mangal Path and blessings. Namita Kothari, Shweta Jain, Kiran and Chirag Shah, Sonia and Anil Jain. During this Dharma Yatra, their pravachans became a source of insight. Many seekers took labh, many minds found answers, and many hearts found peace. Their journey extended beyond homes as well. They visited Ekta Mandir, where their wisdom echoed softly yet powerfully. They connected with the senior citizens group of nearly 70, sharing reflections that brought clarity, calmness, and renewed inspiration. This entire visit became a tapasya of connection, a spreading of light, a serene reminder that when enlightened souls travel, they leave behind
not just footsteps, but footprints of wisdom. Om Maran. Now, Samiji will raise the occasion and start the program. जुड़े हुए हाथ, नमस्कार, महामंत्र। सबसे पहले हम परमेश्वरी भगवान की भक्ति के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। Oh
Thank you.
महात्मा महावीर को नमन, अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन, आदरास्पद सम्मी पुण्य प्रज्ञा जी, समुपस्थित श्रावक श्राविका पर, फिनिक्स जैन सेंटर जिसके बारे में सुना था, नेट पर फोटोएं देखी थी और बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना, प्रभु दर्शन होना, भक्ति में जुड़े हुए पूजा का चलता हुआ वातावरण देखना, ये सौभाग्य होता है। और यही बताते हैं कि लीव्ड जैनिज्म, लाइव जैनिज्म, अप्लाइड जैनिज्म, और इससे ही लगता है कि ये हमारी जीवन का ताना बाना है, जीवन की चद्दर गुथी हुई है, उसमें अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है और जैन धर्म का सार तत्व है। आज मैंने जो विषय लिया, मैं जैसे ही प्रवेश कर रही थी और एक भाई से मेरा परिचय कराया गया, उदयपुर के हैं, ज्ञानशाला में टीचर हैं और वो पढ़ाते, उन्होंने कहा लकीली मैंने मेडिटेशन का चैप्टर पूरा किया, आप सही समय पर आए। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि जो बड़े होते बच्चों को ध्यान पढ़ाया जाता है। कई बार लोग जब एकेडमिक वर्ल्ड में होते हैं हम, उस समय वो कहते हैं बुद्धिज्म हैज लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, बट जैनिज्म हैज लॉट्स ऑफ फास्टिंग एंड रिचुअल्स। लेकिन मैंने कहा कि आपको डांसिंग शिवा मिल जाएंगे, लाफिंग बुद्धा मिल जाएंगे, स्लीपिंग बुद्धा मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, हमारी आर्ट एंड आर्कियोलॉजी इज अ बिग एविडेंस कि कोई भी तीर्थंकर नींद में नहीं है, सोया नहीं है, नाचता नहीं है, स्माइलिंग नहीं है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने भीतर लीन है। एंड दिस इज, एंड वो है मेडिटेशन में लीन है, प्रभु अपने आप में ध्यान में लीन है और जो कुछ प्राप्त हुआ है वह ध्यान की साधना से प्राप्त। तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान से पहले कोई भी लेक्चर नहीं किया, कहीं भी प्रवचन नहीं किया, हम तो केवल ज्ञान से पहले बोल रहे हैं। और अभी आपको यही कही कि जो मौन ने कह दिया वह सब कुछ रह गया, जो वाचा ने कहा वह बह गया। कई बार हम सोचते हैं बोल बोल के काम, लेडीज वो बहुत विश्वास करती कि सम्मी जी बोलते के बिना तो हमारे हस्बैंड सुनते भी नहीं है। तो मैंने कहा कभी ना बोल के तो देखो, ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा आपकी बात। और इसलिए मैंने आपके लिए खास टॉपिक लिया है, मंगल भावना। क्या टॉपिक है? मंगल भावना। तो मंगल भावना ये एक मेडिटेशन भी है और ये कॉन्टेम्प्लेटिव मेडिटेशन है। और उस मेडिटेशन में आप आगे जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार ये भावना हमारे भीतर जागृत होती है। तो हम सुन सकते हैं इस भावना को। भावना भाते भाते spiritual wealth. Re sampan.
and wisdom. Driti sampanno syam. Let me be endowed with patience. Shri sampanno syam. Let me be endowed with spiritual wealth. Re sampanno syam. Let me be endowed with self-discipline. Di sampanno syam. Let me be endowed with intelligence and wisdom. Driti sampanno syam. Let me be endowed with patience. Shakti sampanno syam. Let me be endowed with strength. Shanti sampanno syam. Let me be endowed with peace. Nandi sampanno syam. Let me be endowed with bliss. Teja sampanno syam. Let me be endowed with radiant light. Shukla sampanno syam. Let me be endowed with purity. अभी आप मंगल भावना सुन रहे थे। मंगल भावना की 9 चरण और ये आपके सामने एक ब्लूप्रिंट है कि हमारी जर्नी इन 9 भावनाओं के माध्यम से आगे बढ़े। तो मंगल भावना परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की रचित है। उन्होंने इसे कंपोज किया। इस पर उनके 9 लेक्चर्स हुए और किस प्रकार ये भावना हमारे लिए एक डिवाइन ट्रेजर बन जाती है। तो इस भावना को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपकी फोकस लेना चाहूंगी। श्री श्री का मीनिंग आप में से कितने लोग जानते हैं? श्री का मतलब क्या होता है? श्री श्री का मतलब है, जनरल मीनिंग है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का बीज मंत्र। और विटामिन एम के बिना कुछ होता नहीं, संसार नहीं चल सकता।
चाहे अपना बड़ा जेल सेंटर बने, चाहे आपकी अच्छे घर बने, आपके अच्छे बिजनेस हाउसेस बने, संसार जितना चल रहा है उसमें श्री का साम्राज्य। मैं कई बार इसको मेरी भाषा में विटामिन एम कहते हैं। तो हमारी कुछ बहनें कहती महाराज ये तो पता ही नहीं, के सुना, सी सुना, बी सुना, B12 सुना, ये सुना, लेकिन ये विटामिन एम कहाँ से आता है? आपकी मेहनत से आता है, आपकी बुद्धि बल से आता है। तो ये विटामिन एम है और केमिस्ट के पास नहीं मिलता। आप जितनी मेहनत करेंगे, लेकिन हम कार्मिक थियरी से जोड़े तो हमारे शुभ कर्म, हमारे पुण्य कर्म जो हमारे अंतराय को तोड़कर हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाते, तो मैं श्री संपन्न बनूं, यह भी एक अच्छा संकल्प है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन है। और इसके माध्यम से हम देखते हैं श्री को शोभा भी माना है, श्री को आभा भी माना है। क्यों माना है? क्योंकि जब श्री आती है तो सब कुछ डेकोरेशन बदल जाती है। जब श्री आती है तो व्यक्ति की आभा भी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ उसके सक्सेस होने का, एक लेवल पर सक्सेस होने का ये एक बड़ा एंगल है। तो आभा भी है और हमारा ओरा भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो श्री संपन्न कौन बन सकता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कहा कि हम यदि श्री को अपने घर चाहते हैं तो जरूरी है जल्दी उठना। आलसी के पास श्री कम आना पसंद है। और यहाँ आप लोग बड़े टाइम के पक्के हैं। मंडे टू फ्राइडे कमिटेड पर्सनालिटी और टाइम से ऑफिस पहुंचना, और आफ्टर टाइम से आप अपना पोर्टल लोग कर लेते हैं, अवेलेबल रहते हैं। और श्री के माध्यम से जो व्यक्ति श्री को चाहता है वह जल्दी उठता है और उठ करके अपने आप को भावित और प्रभावित करता है, अपने आप को कनेक्टेड करता है कि मैं अपने प्रति जागरूक बनूं, अपने प्रति पॉजिटिव बनूं, अपने प्रति। तो जो व्यक्ति इस प्रार्थना से, इस भावना से अपने आप को भावित करता है तो उसका ओरा परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही आपका ओरा परिवर्तित होता है, आपका गुरु तत्व जागृत हो जाता है। गुरु तत्व जागृत होते ही आप कोई भी काम अपने आप को कहीं या दूसरे को कहीं वो सफल होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है री संपन्नो शा। री यानी वैसे तो लज्जा, और लज्जा का ये हमारी आंखों में होती कि मैं लज्जा संपन्न बनूं। लज्जा संपन्न क्यों बनूं? कि मेरे से कोई गलत काम ना। यदि आप सबको पता है शादी होती है, आप पहली बार ससुराल जाते हैं तो क्या कहते हैं? बहू के हाथ का आज पहले दिन का खाना है, पहले दिन का नाश्ता है, चाय बनवा के देखते हैं, हलवा बनवा के देखते हैं, है ना? ये एक रस्म होती है। फिर भी पता चल जाता है कि उसके हाथ कैसे, उसके कैसा उसका इंटेंशन है खाना बनाने के। तो ये सब भी मैटर करता है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी पल के नीचे ही रखती है। ऐसा नहीं कि आई एम गुड कुक, मेरे को सब आता है, ऐसे नहीं बोलती है। वो बड़े शालीन, शांत, लज्जावान और सजग भी रहती है कि पहले दिन मेरी ससुराल में समय जो एज वाले माता जी ने वो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि
ये रिचुअल बहुत ही पार्ट था फैमिली लाइफ का। लेकिन यहाँ में और कुछ आगे बढ़े। जो हमारी यूथ है वो लज्जालू हो या नहीं हो, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है ना, वो कई बातों में बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन, बड़ी डिसिप्लिन्ड भी है और उनकी कई बातें बहुत अच्छी है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन बनूं और उसके लिए री का मंत्र वो बहुत पावरफुल है। एक और हम देखते हैं कि हिंदू ट्रेडिशन में क्लीम का मंत्र बहुत पावरफुल है, जैनों में भी उपयोग होता है। तो क्लीम है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है, भीतर की पॉजिटिविटी को जगाता है। तो रीम शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, ऐश्वर्य का बड़ा स्रोत है, एफ्लुएंस का बड़ा स्रोत है। धरणेन्द्र पद्मावती सहित पार्श्वनाथ भगवान रीम बीज मंत्र में विराजमान है और 24 तीर्थंकर भी इसमें विराजमान है। तो एक प्रकार से रीम, हाँ, और श्रीम और क्लीम ये सारे ही बीज मंत्र है और ये हमारे भीतर एक प्रकार से सेल्फ डिसिप्लिन को जगाते हैं। क्योंकि जो भी अक्षर है, अमक्षरम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र ना बन सके। लेकिन जो ज्ञाता होता है वही मंत्र, टोम डिक हैरी मंत्र नहीं बना सकते। मंत्र दृष्टा ही बना सकते हैं। जिन्होंने गहरी साधना की है, मंत्र आते हैं उन्हें, उनके सामने उनके ओरा में प्रकट होते हैं और फिर आगे जाकर मंत्र बनते हैं। तो ये रीम मंत्र बहुत पावरफुल है। उसके बाद आता है धी संपन्न शक्ति। धी यानी अच्छी बुद्धि। एक बुद्धि के लिए थोड़ा सा समझ लें कि बुद्धि है, बुद्धि हुआ इंटेलेक्चुअल पावर। आप जितना लर्निंग करेंगे वो इंटेलेक्चुअल पावर है। उसके बाद जो विजडम और प्रज्ञा का पावर आता है, तो उसके भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी दिया करते थे कि एक कुएं का पानी है और कुएं का पानी हर समय नया 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 आता ही रहे, और एक है कुंड का पानी जो इंटेलेक्चुअल है। नर्सरी से, पहली क्लास से आगे से आगे, आगे से आगे हमने बच्चे को जो कुछ दिया है, जो कुछ सिखाया है, वो सारा बुद्धि के लेवल पर है। लेकिन जो प्रज्ञा का लेवल है, जो विजडम का लेवल है, वो इंट्यूटिव पावर है, वो कुछ नया ही होता है। और हम ये भी देखें कि टैपिंग इनटू दैट लेवल, इट मींस साइंस की नई नई खोज। कोई भी साइंटिस्ट बनता है। कभी आपने देखा होगा, यदि आपके बच्चे साइंस में जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम की लिमिट हो जाती है। मुझे पता नहीं ये कहानी कितनी सच है। आइंस्टीन ने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया। उसके फ्रेंड आए और उन्होंने देखा कि वो तो एकदम लीन होके काम कर रहा है। तो उन्होंने सोचा डिस्टरबेंस ना करूं, लेकिन जो सिटिंग रूम था उसमें उनका टिफिन पड़ा। उन्होंने सोचा टिफिन पड़ा है, लंच टाइम हो गया है, मुझे खा लेना चाहिए, शायद मुझे लंच पे ही बुलाया। तो उसने लंच पूरा खा के खत्म कर दिया। आइंस्टीन 2-3 घंटे के बाद अपना काम खत्म करके और रिलैक्सिंग रूम लंच के लिए आए और उन्होंने
सोचा वाह मैं कितना भूला हूँ, भूल ही गया, मैंने लंच खा लिया है और वापस जाके काम पे लग गए। हम होते तो शायद ऐसा नहीं करते हैं? लेकिन जो व्यक्ति हायर प्लेन पर रह रहे, उनकी चेतना इतनी जागृत है, ऐसे व्यक्ति भूख प्यास को भी विजय कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य स्थितियों को भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इंद्रियां हमें बाहर का ज्ञान देती है, मन उनकी संयोजना करता है, बुद्धि उनका यूज करती है, लेकिन जब प्रज्ञा के क्षेत्र में चले जाते हैं तो वह प्रज्ञा नई नई रूप से जागृत होती है। व्यक्ति नई इन्वेंशन करता है, नई जागरूकता के डोर खोलता है, और जो हमारा ये इंट्यूटिव पावर का सेंटर है, सेंटर ऑफ इंट्यूशन, मिडल ऑफ द आईब्रोज, वो बहुत अपेक्षित है। कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे यूथ का इंट्यूशन पावर जागृत हो, उन्हें इस रूप के ध्यान करवाए जाए, इस रूप के ध्यान में ले जाया जाए, तो उनकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो उनका ये जो सेल्फ डिसिप्लिन का जो लेवल है वो और आगे बढ़ जाता है। अब बुद्धि सब में होती है, लेवल अलग अलग है, लेकिन सद्बुद्धि विरले इंसानों में होती है। मैं किसी का बुरा न सोचूं, मैं किसी का बुरा न करूं, मेरे इंटेंशन अच्छे रहें। मैं एक प्रार्थना, यदि किसी से मेरी वेवलेंथ नहीं मिलती है तो मैं दीवारें खड़ी न करूं, क्योंकि बंधुओं दीवार खड़ी कर लेना बहुत इजी है। भारत से पाकिस्तान बना देना बहुत इजी है, लेकिन आप देख लो वही एक देश था और जब दो टुकड़े हुए तो एक दूसरे के शत्रु बन गए। वैसे ही भाई भाई का शत्रु न बने, बाप बेटे का शत्रु न बने, सास बहू की शत्रु न बने, देरानी जेठानी की शत्रु न बने। ऐसे भाव लाए, भीतर की जागरूकता से ही ये भाव हमारे भीतर आ सकते हैं कि दुर्बुद्धि मुझ में ना चले, मुझे वो लिमिट सेट करना है। आपने देखा होगा 9/11 करने वाले मूर्ख व्यक्ति थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? हाईली एजुकेटेड थे, तभी तो पिन पॉइंट पेंटागन पे उसी समय, उसी मिनट नहीं, उसी नैनो सेकंड में वो घटना घटी। तो वो बिना पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो साक्षर होना और उसका उल्टा कर दो तो राक्षसा। तो आप देखिए कि व्यक्ति सुबुद्धि करे, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु, अच्छी बुद्धि कामधेनु के समान होती है, और कुबुद्धि बहुत ही डिफिकल्ट होती है। तो हम उस बुद्धि से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके नेक्स्ट अब आता है धृति संपन्नो हम श्याम। धृति आप सबको पता है, कितने लोग कह सकते हैं सन्नी जी मेरा धैर्य बहुत अच्छा है, मेरे में बहुत धीरज है, मैं बहुत समझ के चलता हूँ, वेट करता, और कभी कभी एक ही पार्टी में जाना है, यदि वाइफ तैयार नहीं हुई ना तो हस्बैंड कहे कि चलो तुम तैयार भी नहीं हुई। लेडीज के बड़ा 50 प्रकार के मेकअप है, पहले वो लगती है, फिर वो लगता है, फिर वो लगता है, हम तो पैंट शर्ट पहने के निकल गए। तो आप सोचो कि मुझे पता है लेडीज को बहुत काम होते हैं, और घर में भी 4 नहीं, वो 2 आंखें आगे रखती है, 2 आंखें पीछे रखती है, साइड में भी अनेक चक्षु है महिला, उसको सब जगह से चिंता चिंतन सब कुछ रहता है। तो महिलाएं कभी कभी कोई देर करे तो उनके हस्बैंड अच्छा तुम तुम्हारी गाड़ी से आना, मैं मेरी गाड़ी लेके जा रहा हूं, और चले भी जाते हैं। तो बहुत अपेक्षित है
कि हम उस स्थिति में कितना गैस लगेगा, कितने फ्यूल लगेंगे, कितने वायुकाय के जीव मरेंगे, कितने अग्निकाय के जीव मरेंगे, कितनी हिंसा होगी। स्मॉल क्रीचर की भी हिंसा होती है। एक भी बार हम गाड़ी अनावश्यक ना घुमाएं तो धैर्य बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह व्यक्ति जाग जाता है। वैसे तो ये 9 प्रवचन का जो मैटर है ना, मैं आपको कंडेंस करके दे रही हूँ, नहीं तो ये 9 प्रवचन का मैटर है। तो सोचा कि एक बार एक साथ परोस दे, फिर कभी 9 प्रवचन 9 बार में 9 नोट्स में हम दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति जागता है वह व्यक्ति धैर्यशाली होता है। आप सबको याद है भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, गौतम के मन में भी था कि मैं उसके मिश्रा में आया और जितने नए नए लोगों को दीक्षित करके लेके आया, किसी को संवत्सरण देखते ही केवल ज्ञान हो गया, किसी को ऊपर की ध्वजा फहराती देख करके ही ज्ञान हो गया, किसी को पहले त्रिगटे में स्टेप रखते ही केवल ज्ञान हो गया, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे में, और भीतर आकर तो वो सीधे 500 दीक्षित करके लाए और वो 500 कहाँ बैठने लगे? केवलियों की पंक्ति में। तो गौतम स्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाओ, उधर बैठ। और गौतम स्वामी जब ये कहते हैं तो भगवान कहते हैं केवलियों की असाधना मत करो, उनको जहां बैठना है उनको पता है, क्योंकि उनके तो सर्व चक्षु खुल गए। उस समय गौतम को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे गुरुजी गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गए। मैं इनको दीक्षित करके लाया हूं, इन 500 को, और ये 500 केवल ज्ञानी बन गए, मन पर ज्ञानी बन गए, कहां तक आगे बढ़ गए। और धृति का बांध टूटा, आंखों से पानी बहे और कहा प्रभु मुझे कितनी प्रतीक्षा, मैं जिनको लाया वो सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे क्यों रह गया। और गौतम स्वामी को भगवान कहते हैं कि धैर्य रखो, एक दिन तुम भी मेरे जैसे बनोगे। क्या इसी जन्म में बनूंगा? यहाँ इसी जन्म में बनोगे। तो ये है धैर्य की बात। और कहा जाता है कि धैर्य कब तक रखा जाए, इसकी क्या लिमिट है? इसकी बहुत बड़ी लिमिट है। तो आज लिमिट की चर्चा मैं नहीं करूंगी, आगे हम बढ़ते हैं। शक्ति संपन्न हम, शक्ति से संपन्न बनो। शक्ति कई प्रकार की होती है। कुछ लोग शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से मोटे ताजे। अब देखिए 2 शब्द है, एक है बलवान, एक है मोटा ताजा। तो जरूरी नहीं है जो मोटा हो वो बलवान हो। स्थूलेषु प्रत्यय है, स्थूल होना शक्ति का प्रतीक नहीं है। कभी कभी बड़े बिल्कुल दुबले पतले हैं, खाना खाएंगे तो मोटे व्यक्ति से ज्यादा खा सकते हैं, और काम करेंगे तो भी उनसे ज्यादा कर सकते हैं। और कभी कभी शरीर भी प्रमाण नहीं होता, शक्ति तो भीतर की चीज है। इसलिए सदैव प्रार्थना भावना की जाए कि मैं शक्ति संपन्न बनूं, और वह शक्ति पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ सेंसेस, पावर ऑफ माइंड, शरीर की शक्ति सदा नहीं रहेगी। हम सबको याद रखना है कि शरीर की शक्ति ये एक एज के बाद शक्ति का भी उतार आता है। तो बॉडी की शक्ति सदा नहीं, सेंसेस की शक्ति, दांत कैविटी आ गई, प्लैक आ गया, और पता नहीं दांत का ट्रीटमेंट इतना महंगा,
तो क्यों नहीं हम दांत के प्रति सजग बने। फिर दांत के बाद आंख का ट्रीटमेंट, कान का ट्रीटमेंट, कान की कितनी मशीनें आ गई हैं? और तो ये इंद्रियों की ताकत भी समय के साथ कम होती जाएगी, यह भी हमें जानना है। और माइंड की ताकत भी, जितना आज पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो, वो माइंड की ताकत भी बिरले व्यक्ति होते हैं। मुझे याद आता है गुरुदेव तुलसी 83 के गए थे गंगा शहर के उस भवन में, लास्ट दिन भी प्रवचन करके गए और बहुत जोर से गाया था, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर। तो हे प्रभु, आपके पावन पथ पर तो बिरले लोग हैं कि 80+, 90+ हो जाने के बाद भी उनकी माइंड की शक्ति, उनका पावर वैसा ही रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी 90 वर्ष की उम्र में देवलोक हुए, तो लास्ट दिन भी प्रवचन करके गए। आचार्यों के प्रवचन की पुरखदा हजारों में होती है, 10,000, 15, 20, 30 तक भी होती है। तो उसमें भी जो ताकत से लास्ट दिन भी प्रवचन करके गए, तो ऐसा लगता है ऐसा कोई जीवंत व्यक्ति ही कर सकता है। और दोनों ही आचार्य बैठे बैठे गए, बैठे बैठे अंतिम समय तक वो सिटिंग पोजीशन में गए। तो हम देखते हैं शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति हमारे भीतर जाती है। बच्चों की एंट्री की जाए। ये देखो जैनिज्म के टॉर्च बेरर है, फर्स्ट रो। यस, वेरी नाइस, वेरी डिसिप्लिन बॉयज, या गर्ल्स, वाओ। और वॉलंटियर्स, टीचर्स, सबके लिए एक बार बोलेंगे ओम अरहम, ओम अरहम। हाथ खड़े करके हाथों की एक्सरसाइज, ओम अरहम। फूल खिला दे, ओम अरहम। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है, नाश्ता नहीं करके आएंगे? ओम अरहम, ओम अरहम। बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। सभी बच्चे आगे। तो अभी मैं बात कर रही थी शांति संपन्न मोहम शांति। Let me be endowed with peace. So you all understand. You like peace? You like peace? Peace at home, peaceful environment at school, peace with everybody. So peace, shanti chahiye. We need peace of mind, peace within the body, and peaceful communication. Kabhi, sometimes if parents are angry on you, do you like? No, nobody likes that. So you like peaceful communication. And peaceful communication is very, very important. So whenever you try to talk with parents, with your brother, with your sister, then try to restore your peace. So I am a peaceful person, and when peace is inside, then you never shout, you never do a harsh argument. Yes, argument
good, but harsh argument. And no, you speak with rest, you speak with respect, you speak with peace, and you develop that type of personality. Sometimes we think if we are not peaceful, we shout, then mom and dad will listen. No, that's not right. If you say speak very peacefully, they want to listen you. Am I right? No? When you are peaceful, they want to listen to you and then say, yes, what is next? What is next? So it is your peace. Activate them, vibrating them, and your household is peaceful, your environment is peaceful. So, आप जानते हैं कि in the Indian dance, Indian music, there are 9 types of rasa, 9 types of inner feeling, sentiments. So, the highest important rasa is Shantaras. Shantaras is vibrating in all the rasas. Have you seen the images of Tirthankara? That is full of Shantaras. If you see the Tandav Nritya, that is different. That image might be creating different vibration, but the image of Tirthankara always vibrating with the Shanta Rasa, and that Shanta Rasa is the base of all types of rasas. Next. And then, if you are peaceful, you grasp so many things. If you are peaceful, you can see your reflection. So if water is peaceful, the water is still, then you can see the images in the water. If water is dirty and it is moving, then you can't see the reflection. So for seeing the reflection, so try to see within yourself the reflection of yourself. Then you have to be stand still, peaceful, and also charge every day. When you get up, wake up, getting ready, just say yourself, I am a peaceful boy, I am a peaceful girl. And that one thought make a big difference in your life. Next. Nandi Sampannoham Shat. Nandi, Anand. And that is very close to the kids. Kids may kabhi koi bhi success, koi bhi kam success, kuch bhi thoda bahut uncha nicha ho gaya, so they don't get much affected. Might be 5 minutes, 10 minutes, and then they start playing. They forget everything. लेकिन जो बड़े लोग हैं, एक पेरेंट्स के लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ है, तो उनका मुंह उतर जाता है. They feel different. Their aura became changed. That is like it is difficult to kick it out, whatever happened. But for kids, they are ready to release. They release, and they are always, most of the time, they are blissful. Their thymus gland is, their Anand Kendra, the center of bliss is very much activated in the kids. And therefore, sometime after a long day, long office, long tiredness, when you see your kids in your house, you relax. So they are the angels, and they have a blissful aura. Next. So we have to understand what is difference between Anand, bliss, and Sukh, pleasure. Pleasure is momentary. Even if you have a dream of that Tesla car, और टेस्ला के बाद वो कौन सी मुझे पता नहीं नया कौन सी कार आ गई, अच्छा दूसरी जो भी आ जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक आपकी ड्रीम एंड डिजायर में नई नई चीज आती है. जैसे मोबाइल का वर्जन बदलता है तो आप सोचेंगे I have to take that, I have to take that,
And these companies read your mentality. They catch that. And this is the strategy of marketing. But these kids, they understand when they get a toy, they are like that is a sukh, pleasure. But after मैंने इंडिया में ऐसा नहीं देखा कि बच्चे गिफ्ट खोलेंगे और गिफ्ट वहीं छोड़ के चले जाएंगे। ऑर्लैंडो, ह्यूस्टन, न्यूजर्सी रहते हुए, मैंने लंदन रहते हुए कई बार देखा कि बच्चे को कितनी क्यूरियोसिटी है गिफ्ट को खोलने जितनी, और आधे बच्चे गिफ्ट वहीं छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई ग्रीड नहीं है, और बाद में वो गिफ्ट जो भी कमिटी मेंबर है वापस उठा के रखते हैं, क्योंकि ग्रीड नहीं है, वो उनको खोलने जितना ही सुख चाहिए। और उसके बाद लेकिन जो आनंद की बात है, सुख आप देख लो, मैं आप सबको एक क्राइटेरिया दे रही हूँ। सुख का क्राइटेरिया, जो भी नई चीज लाते हो, 1 वीक, 2 सप्ताह, 6 महीना, आप एक नई ड्रेस लाई और आपकी फ्रेंड ने ये पूछा नहीं ये कब लाई, तब आपको मजा ही नहीं आएगा कि मैंने तो इतनी खोज के तो ये ड्रेस ली, इतना पैसा लगाया, किसी ने नहीं पूछा। ऐसा होता है, सबको ये एक नई एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये नया है और जरूर कोई पूछेगा कि ये बहुत, और इसलिए आजकल की जो स्मार्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भले उन्होंने देखा भी नहीं हो ध्यान से कि आज तो बड़ा अच्छे लगे हुए हैं, उसमें उनका दिमाग ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो उनको एक विटामिन मिल जाती है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ने देख लिया। लेकिन जो बच्चों का सुख और आनंद है वो प्लेजर से भी, सो यू नो द मून kids, you know, moon start for the bright half, so that is the developing situation and going up to full moon, but starting from full moon, then the dark half. So सुख और आनंद में यही परिवर्तन है। एक से फुल ब्राइट से शुरू होता है, जिस दिन आपको टेस्ला की नई गाड़ी की नया फोन की नया गैजेट की नया ड्रेस लाते हो, यू हैव सुख, लेकिन वो धीरे धीरे फेड होता जाता है। और आनंद वो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, एकम से दूज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 15th डे, तो वो बढ़ता जाता है। सुख और आनंद दो अलग चीज है, और कई बार हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो हमने सुख की भावना नहीं पाई है। आनंदो में वर्षति वर्षति, हमने एक लेक्चर किया था आनंद भावना पर भी, तो शायद वो रिकलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। सुख है और सुख से अभय और आनंद आता है, क्योंकि जितनी भी वीतरागता की साधना है, आनंद से अभय आता है और अभय से सुख भी आता है, और सुख जो व्यक्ति जितना अभय होता है वह उतना ही सुखी भी होता है। तो जितने जितने तीर्थंकरों ने अभय की साधना की, उनका आनंद भी जागृत हुआ और वो अपने आप में सुस्थित होते रहे। अब नेक्स्ट है तेजः संपन्नोहम शः। कोई युद्ध पढ़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग? Radiant power. Very good. What's your name? कल्प। तो कल्प ने अच्छा पढ़ा, रेडियंट पावर यानी तेज है। देखो बहुत सारे लोग हैं, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ लोग जो वो है वो वैसे नहीं आते, इतना मेकअप पोत कर आते, इतना मेकअप लगाते, तो वो दूसरे ही बन के आते। लेकिन आपकी अपनी आभा भी है, आपका एक अलग ओरा है, और वो ओरा, वो आभा आपके भीतर से है। बाहर के मेकअप का एक टाइम है,
एक पार्टी में गए, लगा के चले। लेकिन जब हम टेम्पल में आते हैं, आपको पता नहीं है, आप इतनी माइन्यूट डिटेल भी नहीं पढ़ सकते कि मेकअप में क्या क्या डाला जाता है। आजकल मुझे लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि वीगन नेल पॉलिश है, मेरा वीगन मेकअप है सब जी। तो मुझे खुशी होती है कि चलो अवेयरनेस आई है। लेकिन फिर भी ये मेकअप की दुनिया, ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, उसमें क्रूरल्टी भी है, तो वो अवश्य देखनी चाहिए। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ मेकअप के, मैं ये कहती हूँ देखना भी चाहिए, क्योंकि आप समाज में जीते हैं, आपको सब चाहिए। लेकिन जो एक रेडिएंट आभा भीतर से आएगी, वो मेकअप से भी बहुत बड़ी चीज है। तो हम तेजस्वी बनेंगे, उस तेजस्विता को हम देखें। सौम्यता, सौम्यता होती है और तेजस्विता होती है, रेडिएंट लाइट होती है। तो हमारे भीतर तेजो लेशा भी है, शीतल लेशा भी है, और तेजो लेशा शीतल लेशा, उसके बीच का समशीतोषण यानी रेडिएंट पावर के साथ जो भी हमारे बच्चे हैं, उनकी भी तेजस्विता बढ़े। और वो तेजस्विता नेचुरलिटी से बढ़ती है। तेजस्वी बनने का पहला साधन है पॉजिटिविटी। जो कुछ भी घटित हो, पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ के प्रति पॉजिटिव। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। अरे आपने दूसरों का ठेका ले लिया क्या? आपने कोई ऐसी कंसल्टेंसी की दुकान खोली है, पूरी दुनिया का ठेका ले लिया? तो दूसरों के बारे में कमेंट करें, बच्चों के बारे में कमेंट करें, हस्बैंड के बारे में कमेंट करें, सासू जी ससुर जी के बारे में, किसी के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। हाँ, वो तो बना बनाया मिट्टी का माधो में किसने कहा है? तो बोलने से पहले, भाव बनाने से पहले हम सजग रहे, और वो सजगता, बोले तो अच्छा ही बोले, उनके लिए अच्छे कमेंट करें। आपको यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर किड्स, तो स्ट्रेंथ में से एक चीज बोले तो उसका पूरा दिन बन जाता है। वैसे ही हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए वैसी ही चीज बोले जो उनको पूरे दिन अप रख सके, पॉजिटिव रख सके और तेजस्वी रख सके। और वो देखने के लिए स्पेशल आई चाहिए, क्योंकि अपने घर की हर चीज वैसे उसका कोई वैल्यू नहीं करते, लेकिन उनमें भी बहुत पोटेंशियल है। और उसके लिए हमारी भाव शुद्धि, आप सबकी भाव शुद्धि हो, और भाव शुद्धि होगी तो दूसरी जगह भी आपको लाइट दिखाई देगी, ब्राइटनेस दिखाई देगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि तेजस्वी बनने के लिए बाल सूर्य का ध्यान, मेडिटेशन ऑन सन बट नॉट आफ्टरनून सन। किड्स, if you see morning sun for half a minute and do 3 नौकार मंत्र, सूर्य को नौकार सुना दो, आपका दिन बड़ा हो जाएगा। प्राणायाम की साधना तेजस्विता बढ़ाने की साधना है, योगासन की साधना तेजस्विता बढ़ाने की साधना है। तो हम अपनी तेजस्विता बढ़ाएं। और द फाइनल गोल इज शुक्लः संपन्नोहम स्याम। अभी कौन पढ़ेगा? हाँ, आप पढ़। हाँ, loud and done with will. You all together. Can you? Yeah. All kids will. Yeah. Yeah. Very good. प्योरिटी से संपन्न मन बहुत ऊंची बात है और हाईएस्ट गोल है, हिटिंग टू द हाईएस्ट गोल। और प्योरिटी कैसे हो, किस प्रकार की हो? हमारे
थॉट्स में बताइए बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योरिटी? या यू से टुगेदर। रोहन आप पढ़ोगे? यस, yes, 5 types of very. So thoughts में purity, words में purity और behavior में purity. कभी कभी कोई लोग दिखाते कर है कुछ है और कर देते कुछ, so not a dual role. Behavior में purity, character वो subtle है कि आपके वो भीतर से वाइब्रेट होते हैं, तो वो कैरेक्टर, ट्रूथफुलनेस, वो कैरेक्टर की चीजें। इमोशन में प्योरिटी और सटल लेवल, भाव के लेवल पर चले तो ये प्योरिटी हमारे भीतर आए और उस प्योरिटी को हम समझ सकें। अब हम सब पढ़ते हैं एक साथ में एक बार हम सभी सिंग करेंगे। अभी आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, तो संस्कृत में पढ़ना है जो है वो। श्री संपन्नो अब सब बोलेंगे। Saraswati mantra, and that Saraswati mantra is the mantra, the seed of Saraswati mantra is Aim, and Aim, Clean, Naman.
So clean is the mantra, seed mantra of positivity. So you can attract positivity, charge yourself, and then activate your brain power by the seed mantra of Saraswati. So here, Samani Punya Pragyaji will lead this kids session. Kids will do, you all can join with them, okay? So first of all, sit straight. Place your palms in your lap, your backbone upright. Close your eyes gently. Aim, Klim, Namaha. You all will recite. Aim, Klim, Namaha. 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 Shant. Now we will practice Mahapran sound, humming sound. For this practice, your lips will be closed, teeth will be open inside your mouth. First, you will breathe in up to the navel. While exhaling, produce humming sound through throat and nostril, and feel the vibrations inside your throat and brain. We will recite this sound for 9 times. Breathe in.
Sit still and stable. Practice of Pai Buddhi. Slow down all types of activity from your side, all types of movements from your side. Make your breath very slow, soft, easy, and rhythmic. Again, we will practice one more mantra meditation. We will practice. That is Om Reem Araham Namah. Om is the symbol of Namaskar Mahamantra. The Reem is the symbol of 24 Tirthankaras, and Araham is the symbol of pure soul. Namaha means I bow to Namaskar Mahamantra, 24 Tirthankaras and pure soul. We will practice this mantra with breathing process. When you recite Om, you will be concentrated at the tip of the nose, Reem in between both eyebrows, Araham in the middle of forehead, and Namaha on the top of the head. In this way, you will visualize all seed mantras. So get ready for that. Breathe in. Breathe
your eyes will be closed. Now try to experience the vibrations of this mantra. Go deep inside. Try to listen to the sound of vibrations. And think that I am physically, mentally, and emotionally healthy. I am full of wisdom, power, patience, peace, bliss, and purity. Join your hands in Namaskar pose near your heart. You all will recite the Saranam Sutra with me. Chattari Saranam meditation is over. Om Arham, Om Arham, Om Arham. बच्चों को सुनाती खुद तो का पाठ भी आता है, तो सभी